Welcome back. You're watching NewsX with me, Malvika. Now marking an extremely slight dip. The air quality index in Delhi NCR hovered at 302 this morning, 13 points down from yesterday's 315. However, this still puts it under the very poor category, indicating a slight improvement from yesterday, but a decline as compared to 3 days ago when the AQI was 257 as of 5:30 am in the morning. The AQI also remained in the very poor category in neighboring Noida and Ghaziabad and was recorded at 321 and 315 respectively, as per the CPCB. The AQI slightly improved in Greater Noida, standing at 278, and Gurugram, where it is 234 and was recorded in the poor category. Meanwhile, the BJP government in Delhi has announced that the national capital will experience rains today after cloud seeding to mitigate the pollution. I am now being joined by my colleagues Aditya Vadavan, who is joining us from Pragati Maidan in Delhi, Arzu Seth joining us from Garakhamba, Delhi, Gulshan Grover joining us from Gurugram, Anil Chaudhary joining us from Ghaziabad, and Devender Kaushik joining us from Faridabad. Well, firstly, I would like to go to Aditya, who is joining us from Pragati Maidan in Delhi. Aditya, take us through the current climate that you witness over there. What is the air quality like? We're also now learning that rains are expected sometime later today in order to mitigate pollution. Well, absolutely, Malvika. I'm just standing at the Pragati Maidan area, and clearly you can see, that there is a long, vehicular traffic that is coming from the other side. And indeed, at this juncture, the air quality index of the Pragati Maidan area is also in the poor category. And since we are all, I'm wearing a mask at this juncture because the pollution is such that it is causing irritation in eyes, irritation in ears. And that is why, I am this precaution, this wearing mask at this juncture is very, very critical. And in the subsequent days, because, the second aspect that is contributing to the pollution in Delhi is the low wind speed during this time, which, forces the particulate matter 2.5 to linger on in the air. And at this juncture also, coincidentally, the stubble burn incidents of stubble burning are also increasing in the states of Punjab and Haryana, which is further aggravating the pollution situation in the country. However, today, there are, talks that this cloud seeding, artificial rain will be done. The impact of the cloud seeding and artificial rain will need to be seen. How far will it be instrumental in controlling the pollution across Delhi NCR? Back to you, Malvika. Well, stay on with us, Aditya. We also have Arzu Seth, who is joining us from Barakhamba. Arzu, the AQI, of course, continues to be in the very poor category. What are you seeing over there? Have you been able to speak to some people? What are the difficulties that people are facing with the air quality index hitting a low? Well, definitely, Delhi continues to breathe the toxic air. And if we talk about today's AQI of overall Delhi is more than 300, which comes under the very poor category. Also, if we categorize and talk about the other places in the national capital, we take ITO. At the ITO also, the AQI is more than 3, near 330. Also, if we talk about the CP or the India Gate area, the AQI continues to be above 300. So the red zone areas have increased in the national capital in the past few days, and also there is no sign of relief coming up because we have seen in the previous year also the rainfall is only the thing which bring the relief from the from the pollution. So definitely, if there is a cloud seeding, which is the Delhi government is planning, the artificial rain that the government is planning, if that happens, there will be a relief. And also, today is a cloudy weather, so it is also expected that rainfall will be, happening. A light spell is will be happening in the national capital, so that will also lead to some betterment in the environment and will reduce some pollution in the national capital. But right now, if we talk about the current situation, the AQI continues to be in the very poor category, and due to which there are several health issues that the people are witnessing. In fact, some people have stopped
doing the morning walk. And also, if we talk about the problems that I have interacted with the people, and they told us that they are facing breathing issues, they are facing itchiness in their eyes. So these are the problems that the people are facing because of the air pollution in the national capital. Yes, Malvika. Well, stay on with us, Arzu. We also have Gulshan Grover who is joining us live from Gurugram. गुलशन, गुरुग्राम में इस वक्त क्या स्थिति है? जैसा कि हम देख रहे हैं दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करवाने की बात हो रही है, वहाँ पर भी किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं सरकार द्वारा? वहाँ पे भी पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। देखिए, बिल्कुल आज कुछ राहत जरूर है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 148 इस समय दर्ज किया जा रहा है विकास सदन एरिया, जो कि गुड़गांव का मिनी सेक्रेटरीट एरिया है, जहां पर डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, एसडीएम या ऑल जितने भी डिस्ट्रिक्ट के बड़े अधिकारी हैं वो विकास सदन मिनी सेक्रेटरीट एरिया में बैठते हैं। तो वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 148 इस समय दर्ज किया जा रहा है। और कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर 200 पार जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय दर्ज किया गया है। तो खराब श्रेणी में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ही है, क्योंकि गुड़गांव अगर हम पिछले एक हफ्ते से देखें तो लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स 250, 300, 350 के आसपास जो है वो दर्ज किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर गुरुग्राम नगर निगम की तरफ से जो स्वीपिंग मशीनें हैं या फिर टैंकरों के माध्यम से छिड़काव है वो किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान सीरियसनेस थोड़ा कम हम कह सकते हैं कि एमसीजी की दिख रही है। इस तौर पर लगभग 80 सैनिटेशन इंस्पेक्टरों की भी ड्यूटी लगाई गई है और 4 ज्वाइंट कमिश्नर जो कि मॉनिटरिंग करेंगे इन 80 सैनिटेशन इंस्पेक्टरों पर, जो कि ये देखरेख करेंगे कि कहां पर गुड़गांव में निर्माण साइट पर काम चल रहा है या वहां पर किस तरह के स्टेज 2 के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि निर्माण साइट पर आप ग्रीन नेट लगा करके आप निर्माण कार्य कर सकते हैं, खुले में सामग्री आप कोई भी निर्माण की नहीं रख सकते हैं, क्योंकि खुले में अगर डस्ट होगा तो वो AQI को बढ़ाएगा। सड़कों पर पानी के छिड़काव की बात हो, टैंकरों पर हमने देखा कि कुछ जगह टैंकरों से पानी पर छिड़काव जरूर किया गया, लेकिन अक्सर खाना पूर्ति की जा रही है। इसको लेकर हम ये जरूर कह सकते हैं सीरियसनेस की जरूरत है। प्रशासन ने बेशक स्टेज 2 लागू कर दिया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जगह जगह कूड़े के ढेर जो है वो लगे हुए हैं। गुड़गांव में सड़कों पर मिट्टी का जो है देखी जा रही है, जगह जगह मिट्टी के कॉर्नर पर जो सड़क किनारे कॉर्नर पर मिट्टी काफी देखी जा रही है। स्वीपिंग मशीनों से देर रात काम तो किया जा रहा है, लेकिन अक्सर वो काम धरातल पर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। इसलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी हो रही है। सांस लेने में दिक्कत के मरीज हो या आंखों में जलन के मरीज हो, खांसी के मरीज हो, जुकाम के मरीज हो, अस्थमा के मरीज हो, एलर्जी के मरीज हो, वो बड़ी संख्या में अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और वो अस्पतालों में ओपीडी की संख्या भी काफी जो है वो बढ़ गई है। अब जिम्मेदारी लोगों को खुद समझनी होगी यदि इस बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकना है। अगर बढ़ता वायु प्रदूषण नहीं रुका तो आने वाले समय में लोगों को और कठिनाइयां का सामना करना पड़ सकता है। और जिस तरह से अभी मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो आने वाले समय में और भी ज्यादा मरीज बढ़ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर गुड़गांव का जो स्वास्थ्य विभाग है, सिविल अस्पताल में इसको लेकर एक अलग से बेड भी जो है आरक्षित किए गए हैं, ताकि किसी भी मरीज को अगर समय पर बेड की जरूरत पड़े तो उनको तुरंत जो है वो बेड मुहैया कराया जा सके। और डॉक्टरों का भी कहना है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। N95 जो मास्क है उसको जरूर पहने, ताकि जो पोल्यूशन है वो आपके अंदर ना जा सके। क्योंकि लोग सुबह सुबह सैर करते हैं, लेकिन सुबह अब सैर करने वालों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि शुद्ध हवा की सांस उन्हें नहीं मिल पा रही है। पॉल्यूशन जो है वो है आसमान पर जो है सफेद चादर जो है ढकी हुई है, और जो धूल उड़ती है उसी का नतीजा है कि पॉल्यूशन बढ़ता है। और पॉल्यूशन बढ़ता है तो लोगों के बीमारियां होती हैं और बीमारियों से जो है अस्पतालों में लाइनें लगती हैं। तो अब जिम्मेदारी लोगों को खुद समझनी होगी, और जिम्मेदारी लोग खुद समझेंगे तो इस बढ़ते वायु प्रदूषण को रोका जा सकेगा। नहीं तो इसी तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, गुलशन बने रहे हमारे साथ। आई ऑल्सो हैव अनिल चौधरी हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम गाजियाबाद। अनिल, वहाँ पर क्या स्थिति है इस वक्त? क्या AQI रिकॉर्ड किया गया है और आपको आसपास क्या देखने में मिल रहा है जो लोगों के द्वारा भी एक्सपीरियंस किया जा रहा है इस एयर क्वालिटी के चलते?
देखिए, बीते एक हफ्ते से AQI बेहद खराब श्रेणी में यहाँ का दर्ज किया जा रहा है, जो कि फिलहाल की अगर बात करें तो 300 के आसपास AQI फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है। हालांकि कागजों में ग्रेड 2 के नियम जरूर लागू कर दिए जाते हैं, पर ग्राउंड जीरो पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। यही वजह भी है, लगातार पोल्यूशन का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गाजियाबाद में मौजूद है और गाजियाबाद की तस्वीरें हम दिखा देते हैं, क्योंकि जब ग्रेड 2 के नियम जब लागू किए जाते हैं तो सड़कों पर लगातार छिड़काव किया जाता है। हम सुबह से लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं और यही मॉनिटरिंग कर रहे हैं आखिरकार पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। ग्रेड 2 के जब नियम लागू होते हैं, दरअसल लगातार छिड़काव सड़कों पर होता है। आप देखेंगे किस तरीके से सड़कें जो है सूखी पड़ी हुई हैं और जो धूल भरे जो कण हैं वो लगातार हमारी वायु में जो एयर में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यही एक पोल्यूशन का कारण भी बनते हैं। वहीं लोगों को उम्मीद भी ये है कि आज बारिश हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आप देखेंगे आसमान में काले बादल भी छाए हुए हैं। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से जो काम किए गए हैं वो काम नाकाम साबित हो रहे हैं। उस लेवल पर कोई भी काम जमीन पर नहीं दिख रहा है। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अब लोगों को उम्मीद है शायद कुदरत की ही मेहर हो जाए कि आज बारिश हो जाए, तो बारिश से कहीं ना कहीं लोगों को पोल्यूशन से राहत मिल सकती है, दिल्ली NCR के लोगों को। जी अनिल, बने रहे हमारे साथ। आई ऑल्सो हैव देवेंद्र कौशिक who is in fact joining us live from फरीदाबाद। देवेंद्र, वहाँ पर क्या परिस्थिति है इस वक्त? कुछ सुधार आया है AQI में और प्रशासन के द्वारा क्या किया जा रहा है इस वक्त इस पोल्यूशन को कम करने के लिए? बिल्कुल, देखिए, अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में जो आप सुधार की बात कर रहे हैं, सुधार कमोवेश जो हालात दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद के हैं उसी तरह के हालात फरीदाबाद में भी देखने को मिल रहे हैं। और हम लगातार पिछले 10 दिन से देख रहे हैं कि जो बल्लभगढ़ का इलाका है वहां सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि अभी छठ का पर्व चल रहा था, कल शाम को भी डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया, काफी तादाद में लोग घाटों पर पहुंचे थे, तो वहां पटाखे भी चलाए गए और इसी तरह से सुबह के वक्त में भी पटाखे चलाए गए हैं। फिलहाल अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो बल्लभगढ़ में फिलहाल 319 AQI का लेवल दिखाई दे रहा है सुबह का वक्त। और भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद में देखने को मिला था। हालांकि कुछ जगह हम कह सकते हैं कि कुछ राहत जरूर फरीदाबाद में अलग अलग इलाकों में मिलती हुई दिखाई दे रही, लेकिन मौसम का जो बदलाव है, जब तक बरसात नहीं होती, अगर ये बदलाव यानी कि इस तरह से बादल रहेंगे और हवा नहीं चलेगी, तो ऐसे में जो पॉल्यूशन है वो और ज्यादा बढ़ने की आशंका ऐसे मौसम में दिखाई देती है। और तो यही हालात फरीदाबाद में फिलहाल बने हुए हैं। अगर अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई की बात की जाए तो जमीन पर कोई खास कार्रवाई हमें नहीं दिख रही है। कागजों में जरूर दावा किया जा रहा है, टैंकरों से पानी के छिड़काव के दावे किए जा रहे हैं नगर निगम की तरफ से, स्वीपिंग मशीन सड़कों पर लगाई गई है, लेकिन अगर 1-2 मशीनें सड़कों की स्वीपिंग करेंगी तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि फरीदाबाद की तमाम सड़कों की सफाई हो पाएगी। और जिस तरह से वाहन सड़कों पर चल रहे हैं और सड़क किनारे जो डस्ट है उसकी वजह से जो उड़ती धूल है वो भी पॉल्यूशन को बढ़ा रही है। PM 2.5 की बात करें, PM 10 की बात करें, उनमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और ऐसे में लोग सड़कों पर चलने वाले लोगों के लिए खासी परेशानी इसलिए भी है कि कई जगह जाम की स्थिति होती है और जब रेड लाइट पर गाड़ियां रुकती हैं तो वहां गाड़ियों के साइलेंसर से निकलने वाला जो धुआं है वो भी लोगों को आंखों में जलन कर रहा है, गले में खराश उससे महसूस हो रही है। और सुबह के वक्त खासतौर से जो ड्यूटी पेशे पर अपने लोग काम पर जाते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें ज्यादा हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं और जो छोटे बच्चे हैं जो कि स्कूल भी जा रहे हैं, ऐसे में तो उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना फरीदाबाद में करना पड़ रहा है। देखना होगा, चूंकि ग्रेड 2 के नियम दिल्ली NCR में लागू हैं और अगर ग्रेड 3 या 4 लागू होते हैं तो फिर ज्यादा बंदिशें लगानी होंगी। ऐसे में जो तमाम ढाबे की बात करें, होटल की बात करें, जहां कोयला जलाया जाता है उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जितने भी, क्योंकि औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को कहा जाता है, तो यहाँ उद्योगों में भी, कंपनियों में भी PNG से चलने वाले जेनसेट लगाने के लिए आदेश पहले ही काफी दिनों पहले दे दिए गए थे, लेकिन कई जगह अभी भी डीजल जेनसेट चल रहे हैं। उनकी वजह से भी पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो HSPCB है, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से जरूर कार्रवाई की बात की जा रही है, मॉनिटरिंग करने की बात की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो लोग फरीदाबाद के हैं वो इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं HSPCB पर कि जो मॉनिटरिंग जिस मशीनों से की जा रही है, इक्विपमेंट जो लगाए गए हैं वो कई जगह बंद पाए जाते हैं और बंद पाने की स्थिति में जो एक्चुअल डाटा है एयर क्वालिटी इंडेक्स के लेवल का वो नहीं मिल पाता। फरीदाबाद में करीब आधा दर्जन जगह पर इक्विपमेंट लगे हुए हैं जिनसे एयर क्वालिटी इंडेक्स को मापा जाता है,
में से कई बंद होते हैं, समय समय पर अलग अलग समय पर बंद होते हैं। समझिए आपके अगर सुबह के वक्त में माना जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल बढ़ा हुआ होता है और ऐसे में उस वक्त में मशीनों में वो माप दर्ज ही ना हो पाए तो फिर कैसे पता चलेगा कि कितना पॉल्यूशन है। तो इस बात पर भी फैजाबाद के लोग सवाल उठा रहे हैं। बल्लभगढ़ का हमने जिक्र किया, बल्लभगढ़ में लगातार हम देख रहे थे कि इक्विपमेंट्स ठीक से काम कर रहा है, इसीलिए 300 से ज्यादा का वहां दिखाई देता है। फरीदाबाद के अलग अलग जगह पर अलग अलग वक्त में क्योंकि अप डाउन लेवल का होता है AQI का, तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्यों आखिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से उन मशीनों को नहीं चलाया जाता है। नगर निगम की भी अगर बात करें, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की है, MCF की तरफ से कार्रवाई की जानी है, चालान करने हैं ऐसे लोगों के जो कूड़ा जलाते हुए पाए जाते हैं या और कहीं किसी तरह से भी ज्वलनशील पदार्थ को जलाते हैं। कंपनियों में भी कई बार ऐसा देखने को मिला है कि वहां ज्वलनशील पदार्थ जलाए जाते हैं तो उससे भी धुआं होता है। धुआं की वजह से फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स उस है। तो इन तमाम चीजों को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई होते हुए अभी नहीं दिख रही है। दावे जरूर कागजों में अधिकारियों की तरफ से किए जा रहे हैं। जी देवेंद्र, आपने जिक्र किया है सरकार के द्वारा लिए जा रहे स्टेप्स का। आई वुड लाइक टू आस्क बोथ ऑफ my colleagues joining me from Delhi. Aditya, you're joining us from Pragati Maidan. Do you see any steps being taken by the government over there? Are there steps being taken in order to combat this rising AQI that we see? Although there has been some improvement, it continues to be in the very poor category. Well, absolutely. Malvika, just from the Pragati Maidan area, since we will show our viewers, since grab to measures are in place. However, the traffic movement is going as usual. This is a very normal traffic. Completely, we show the pictures of the visuals of the car. This entire road, is now the traffic is coming here from the other side. So there has been no, as far as the vehicular pollution is concerned, because the vehicular pollution is a considerable amount of pollution, that causes pollution in Delhi. However, since these grab to measures are in place, there has been no, as far as the vehicle traffic is concerned, there has been no significant reduction in this. However, since the cloud seeding is being done in Delhi, will be done today, so we can expect in some areas the air quality index will definitely come down to substantial level. However, the long-term effect of the cloud seeding will also be required to be monitored in the days to come. Yes. In the next 4 or 5 days, because the clear picture will only be visible, when after 5 days there will be a considerable reduction in the PM 2.5 concentration of the PM 2.5 in the air. So clearly at this juncture, it needs to be seen whether graph 2 is already in place, whether graph 3 is already put in place, if the cloud seeding does not also work for Delhi to combat pollution. Yes, Malvika. Yes, Aditya. I also have Arzu Seth, who is of course joining us from Barakhamba in Delhi. Arzu, what about that area? Do you see steps being undertaken since you're joining us live from over there? What is being done to combat this rising pollution levels? Well, definitely, as we talk about the measures that the government is taking, there are steps that the government has taken. But yes, as if we talk about the current situation, let me also give you the glimpse around. And we are in the field since morning, and we have not seen a single water sprinkler on the road. And this raises strong questions against what the preparations are being made and what the government is doing. In fact, as far as the pollution is concerned, because as you can see, the entire road is there is a dust around, but there is no water sprinkler that can be seen in the central Delhi where we are present right now. So definitely, if we see the weather also, it's like a cloudy weather. There is a smog-like situation in the national capital, and in fact, in the morning there were much more smog, and the visibility was very low. So at this point of time, there are measures that needs to be taken to combat with the pollution. Yes, there is some relief from yesterday, but still the AQI is in the very poor category, which is above 300. Absolutely, Arzu. I would in fact like to thank all of my colleagues
who joined us live with their inputs. Aditya Vadhavan joining us from Pragati Maidan, Arzu from Barakamba, Delhi, as well as Gulshan from Gurugram, Anil Chaudhary from Ghaziabad and Devendra Kaushik from Faridabad, as we track, of course, the air quality levels in the National Capital Region. Meanwhile, let's now look at how my colleagues who have filed ground reports on this big story. So let's take a look at that. Well, Delhi continues to breathe the toxic air as the AQI continues to be in the very poor category. Right now, I'm present at the ITO and would like to give you the glimpse around how the toxic air has engulfed the very national capital. These are the visuals from the ITO. As you can see, there's a toxic layer of smog that can clearly be seen in the environment. The visibility has gone down, and also if we talk about the AQI, today's AQI in the national capital is in the very poor category. I would like to show the data also as to make the viewers understand about the AQI. The overall AQI of the national capital is in the very poor category, which is 306. And also if we talk about the other places in the national capital, as you can see, there are a lot of red spots that can show how the toxic air is there in the national capital. At the ITO, the AQI is 328. At Siriport, it's 349. At Mandirmarg, it's 307. At RK Puram, it's 318. At Punjabi Bagh, it's 324. So as you can see, as you go down at several places in the national capital, most of the places recording the AQI above 300, which means that the air quality is very poor, and which is also leading to the several health issues among the people, especially among the children and the elderly people. And also if we talk about the weather today, it seems like it's a cloudy weather today, and it seems like there is an expectation of the light rainfall. And if there will be a rainfall, we have seen earlier also, the rainfall brings the relief from the pollution. So this is also expected that if the rainfall will be there, the people of Delhi will get some relief from the pollution. I'm Arzu Said with video journalist Varun for NewsX in Delhi. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आबो हवा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। दिल्ली में AQI लेवल की बात की जाए तो फिलहाल दिल्ली का AQI लेवल 246 है। आप देख सकते हैं हम लोग इस वक्त दिल्ली के कर्तव्य पथ पर है, और यहाँ के अगर AQI लेवल की बात की जाए तो 246 जो है AQI लेवल देखने को मिल रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली की सुबह जो है वो एक धुंध की चादर से ढकी हुई है। जिस तरीके से AQI लेवल लगातार 200 के पार बना हुआ है, 250 के पार बना हुआ है, उसकी वजह से एक धुंध की चादर जो है आसमान में देखने को मिल रही है, जिसको लेकर लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्तव्य पथ पर देख सकते हैं कि जहां सुबह के समय लोग टहलने आते थे, घूमने आते थे, कहीं ना कहीं अब उनकी संख्या भी जो है वो कम हो चुकी है। बहुत ही कम लोग हैं जो यहाँ पर घूमने या टहलने आए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से लोगों की आवाजाही भी अब मॉर्निंग वॉक के दौरान कम होती नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो जहां दिल्ली में ग्रैब 2 के नियमों को लागू किया गया है, दिल्ली सरकार एक के बाद एक कदम उठाए जा रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि आज दिल्ली में कई जगहों पर बारिश हो सकती है, और उम्मीद लगाई जा रही है कि होने वाली बारिश के कारण दिल्ली का AQI लेवल जो है वो सामान्य पहुंच सकता है। चूंकि जिस तरीके से लगातार AQI लेवल बढ़ता जा रहा है, जहां सरकार कृत्रिम वर्षा को लेकर प्लानिंग कर रही है, वहीं मौसम विभाग साफ तौर पे ये भी कह रहा है कि अगर बारिश हो जाती है तो बढ़ते AQI से जो है राहत मिलेगी। वहीं दिल्ली वालों को बढ़ते AQI की वजह से होने वाली परेशानियों का सामना कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अब दिल्ली की आबो हवा जो है वो दिल्ली की बारिश के ऊपर टिकी हुई है। दिल्ली में बारिश होती है तो लोगों को बढ़ते पॉल्यूशन से राहत मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली।